the problems. Uh, One of you inform your classmates that class is going on it as soon as possible. What we was doing in the previous class, paging. Okay. Okay. So till now, 19 students have joined. Okay. Okay, so in the previous class, we have seen the paging and paging hardware. Okay. So I have one question. What is the difference between page and frames?
What is the difference between page and frame? Yes. पेज जो है वो प्रोसेस का फिक्स्ड डिवीजन होता है और फ्रेम रैम का. Okay. So pages is division. What we do is the logical address and आपका जो frame होता है that is division in the physical address. Okay. Now अगर आपको given हो कि this is the length of logical address. There is length of logical address. जैसे कि बोला जाए कि अगर लॉजिकल एड्रेस है वो 32 बिट का है और पेज का साइज जो है वो आपको गिवन है कि लाइक 256 किलोबाइट का आपका पेज है. पूछा जाए कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पेजेस वी हैव इन द सिस्टम, देन कैन यू टेल दैट? और यहीं पे गिवन है फिजिकल एड्रेस आपका 28 बिट का है. तो आपसे पूछा है व्हाट इज द number of pages and number of frames. So can you do that? सर वो क्वेश्चन क्या था? और यहाँ पे एक चीज और गिवन है कि जो आपका सिस्टम है दैट इज बाइट एड्रेसेबल. सर वो बताना क्या था? बताना है आपको कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पेजेस इन आवर सिस्टम एंड व्हाट इज नंबर ऑफ फ्रेम्स इन आवर सिस्टम. Yes, student, all of you please respond to this question. What will be the number of pages and what will the number of frames? All the information necessary for the computation is already given to you. Now do the calculation. Subham has responded number of frames will be 14 and pages will be 10. Okay. What was the answer? 14 and 10, na? Okay. Anyone else? Okay. So
So how we will find the solution of this question, this kind of questions? How will find the solution? तो आप नंबर ऑफ पेजेस आपके कैसे निकलेंगे, क्योंकि यहाँ सर जो आप ये LA इज इक्वल टू 32 बिट दिए सर, ये समझ में नहीं आया। ये लॉजिकल एड्रेस को स्टोर करने में 32 बिट लग रहा है या फिर लॉजिकल एड्रेस? ब्रेकिंग सुरेश, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। कैन यू type your query or whatever it is in the chat box? Okay, so आपका क्या है कि what is the number of pages? Number of pages अगर आपको find करना है तो pages is related with what? Pages is related with आपका किसके साथ होता है? Logical address space के साथ, ठीक है। तो अब number of pages कितने हो जाएंगे? 2 raised to the power 32. What is the size of logical address space divided by पेज का साइज। यहाँ पे पेज का साइज क्या होगा? पेज का साइज गिवन है 256 KB and it is also given as it is a byte addressable, so 2 raised to the power 32 divided by 256 is 2 raised to the power 8 into 2 raised to the power 10 for kilobyte and it is byte addressable, so this. So अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 18 यहाँ से निकल जाएगा आपका। तो यहाँ से जब 18 निकलेगा तो क्या हो जाएगा 2 raised to the power 14। तो नंबर ऑफ पेजेस भी 2 raised to the power 14। एंड व्हाट अबाउट नंबर ऑफ फ्रेम्स? नंबर ऑफ फ्रेम्स भी उसी टाइप से निकलेगा। फ्रेम्स इज रिलेटेड विद व्हाट? फिजिकल एड्रेस स्पेस। सो 2 raised to the power कितना हो जाएगा 28। ये भी बाइट एड्रेसेबल है, सो बाइट। अब यहाँ पे जो स्कीम है, यहाँ पे क्या है कि जो होता है पेजिंग के केस में वो फ्रेम साइज और पेज साइज इज इक्वल, सो आपका फ्रेम साइज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ। आपका वॉइस क्रैक हो रहा है सर। Is it for everyone that my voice is cracking? Yes sir. Yes sir. Okay. Okay, give me a moment, student. Let me find out the solution. मेरा मोबाइल भेजिएगा। Okay, am I audible to all of you? Yes, student, do let me know. Am I audible to all of you? Yes sir. Yes sir. Still voice is cracking? Is it still voice is cracking? No sir. Okay.
So let's continue. Whenever this will happen, please let me know. Okay, so where we were solving this numerical here. So so more thing I have to. So we was in the situation that we have to find the number of frames. So what will the number of frames that we have 2 raised to the power 28? This is the size of what? Physical address. And as we know that it is byte addressable, so 2 raised to the power 28 byte it will. And what is the size of page we have? We have a size of page of 256 kilobyte. And as we know in the paging scheme, the size of page is equal to size of the frame. So it will be equal to, what is the frame size? Frame size is 256 kilobyte. Okay. So again, the calculation will be same, 28 into 2 raised to the power 8 into 2 raised to the power 10. So it will be 2 raised to the power 10. जिन्होंने 14, आई थिंक शुभम ने आंसर किया था 14 एंड 10, थोड़ा सा गलत था वो, 2 रेज टू द पावर 49 2 रेज टू द पावर 10 हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्रेम्स एंड नंबर ऑफ, ठीक है. सो दिस इज द सिनेरियो दैट हाउ वी कैन फाइंड दैट हाउ मेनी पेज एंड हाउ मेनी फ्रेम्स वी कैन हैव. So now come upon to the situation that we have to look after that. How the page is yes. for CPU and frame is for? Frame is for physical address, main memory. Okay, so next we are moving upon the free frames. We have to collect the information that in the current system, that how many frames we have, and how many frames is there which we are needed in the system, that how many available frame we have and what are the free frame we have. It means अगर आपके सिस्टम में 10 फ्रेम है, अगर गिवन है कि आपके सिस्टम में 10 फ्रेम है, तो उसमें हमें जो अपनी फिजिकल मेमोरी है, फिजिकल मेमोरी में हमें फ्रेम्स का एलोकेशन हम करते हैं. ओके, सो वी हैव टू आल्सो फाइंड आउट दैट कि आपका करंट सिनेरियो में कितना नंबर ऑफ आपका फ्रेम्स जो है वो फ्री है और कितना नंबर ऑफ फ्रेम्स को अवेलेबल करवाया गया है पेजेस के थ्रू. लाइक हो सकता है कि इसमें पेज 0 रिसाइड कर रहा हो, पेज 1 रिसाइड कर रहा हो. तो हाउ मेनी फ्रेम्स, यहाँ पे अगर आपके 10 हैं तो उनमें से मान यहाँ पे आपके 1 2 3 फ्रेम्स आपके फ्री हैं, बाकी 7 फ्रेम हो सकता है और कुछ वैल्यूज हों, ठीक है. तो वो अवेलेबल है और फ्री है. कितने अवेलेबल हैं और क्या फ्री है, मतलब फ्री और अवेलेबल बात सेम ही है, ठीक है. तो क्या सिचुएशन है करंट में वो हमें पता लगाना होता है बिफोर द एलोकेशन एंड आफ्टर द एलोकेशन, बिकॉज वी यूज दैट इफ a page is needed, then page must be present in the main memory. ओके, और एक बात हमेशा याद रखिए स्टूडेंट, हर एक प्रोसेस के लिए अपना पेज टेबल स्वयं का होता है, ठीक है. ये नहीं कि जितने भी प्रोसेस आपके सिस्टम में होते हैं उनके लिए एक ही पेज टेबल होता है, नहीं, ऐसा नहीं है. जितने भी प्रोसेस न्यू प्रोसेस क्रिएट होते हैं, हर एक के लिए अपना एक सेल्फ का पेज टेबल होता है मेन मेमोरी में. एज आई टोल्ड यू कि पेज टेबल भी कहाँ होता है, आपका मेन मेमोरी के अंदर ही होता है. तो चलिए, तो हमने जो बात की थी आपको स्वैप इन स्वैप आउट के बारे में, वहां पहले आपको लेके चलते हैं कि व्हाट इज स्वैप इन स्वैप आउट. तो स्वैप इन स्वैप आउट में क्या होता था कि इफ अ पेज इज नीडेड देन पेज मस्ट बी प्रेजेंट इन द मेमोरी, एंड इफ वी हैव फ्री फ्रेम्स, मतलब यहाँ पे फ्री फ्रेम लिस्ट बनाया जा रहा है. यहाँ फ्री फ्रेम लिस्ट पहले ये था कि
लिस्ट आपका में 14, 13, 18, 20 एंड 15 आपका खाली था। अब क्या हुआ, इसमें एलोकेशन कुछ कर दिए गए, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पेज 0 को 14 में एलोकेट कर दिया गया। तो पेज 0 को कहाँ एलोकेट कर दिया गया, 14 में। पेज 1 को कहाँ एलोकेट कर दिया गया, आपका 13 में। तो 13 में पेज 0 का, 13 में आपका पेज 1 का एलोकेशन हो गया। फिर आपका 18 में पेज 2 का एलोकेशन हो गया। फिर आपका पेज 20 का एलोकेशन 3 में हो गया। तो अब हमारा इतने फ्रेम्स तो क्या हो गए, यूज्ड हो गए। अब हमारा फ्री फ्रेम अब कितना कहाँ बच गया, आपका फ्रेम कौन सा बच गया, 15 नंबर फ्रेम खाली है। तो इस केस में अगर एक नया पेज और नीडेड होगा तो वो क्या होगा, उसको भी हम जो आपका फ्रेम 15 है उसमें उसको एलोकेट कर देंगे। लाइक आपका पेज जो है 4 यहाँ पे आ गया। अब बात ये आती है कि अगर हमारा पेज 5 आया तो हम उसको कैसे एलोकेट करेंगे, क्योंकि हमें वी have a need of page 5 in the system, and as you know that we have to do the process of swap in and swap out. तो swap in किसको करना है, ये तो हमको पता है कि पेज 5 को swap in करना है, बट किसको हम swap out करेंगे ये हमें कैसे पता चलेगा। तो फिर for this particular thing we have page replacement policies. पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज क्या है, तो पॉलिसीज हैं वो ये बताती हैं कि विच फ्रेम विल एंटर इन द सिस्टम एंड विच फ्रेम विल बी कम आउट ऑफ द सिस्टम। ओके, बिकॉज इफ देयर विल बी अ space or free frame available in the system, then there is a no need of replacement. You have to just put through. Okay, उसको डायरेक्टली हम क्या करेंगे, उसमें रख देंगे। बट इफ वी डज नॉट हैव free frames, then in such scenario what we will do, which page will be chosen as a victim for the replacement, क्योंकि अगर गिवन है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारे सिस्टम में 4 ही अगर फ्रेम अवेलेबल हैं, तो हम इसको तो घटा या बढ़ा नहीं सकते हैं, और अगर हमारा इनिशियल में पेज 0, पेज 3, पेज 1 एंड पेज 2 आ गया, और अगर हमारा अब पेज 4 आना चाहता है तो वी डज नॉट हैव सफिशिएंट स्पेस, so we have to replace one page, so we have to choose the victim for the replacement. And for this policy, this what we will use, page replacement. And in the page replacement we have various technique. First one is known as, सबसे पहले सबसे आसान वाला, first come first serve. फिर सेकेंड पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी आता है जिसको कहा जाता है ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। देन आता है आपका LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। मेनली यही 3 यूज होते हैं, और चौथे में आप कह सकते हैं मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड। FCFS, यस स्टूडेंट, नाम याद रहेगा। FCFS इज फॉर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ऑप्टिमल, ये तो एब्रिविएट भी करने की जरूरत नहीं, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसीज होता है। देन हमारे पास क्या होता है, देन वी हैव LRU, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, एंड MFU, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड। सभी पेज रिप्लेसमेंट का अपना टेक्निक है।
कि वो कैसे किस पेज को सेलेक्ट करेंगे और उसको सिस्टम से बाहर निकालेंगे और दूसरे पेज को रिप्लेस करेंगे उससे। ओके, तो ये तो सिचुएशन है। अब मैं यहां पे पूछता हूं, मैं यहां पे एक चीज पूछना चाहता हूं कि अगर फिर से पेज 0 का रिक्वेस्ट आया, अभी पेज 14 का रिक्वेस्ट नहीं, पेज 4 का रिक्वेस्ट नहीं आया है, फिर से पेज 0 का रिक्वेस्ट आया है, तो ये सिनेरियो कहलाता है कि आपका पेज 0 तो पहले से आपके सिस्टम में प्रेजेंट है, तो ये कहलाता है आपका हिट, ये कहलाता है आपका हिट। और अगर जो पेज न्यू पेज है वो सिस्टम में हमारे प्रेजेंट नहीं है, लाइक इन केस पेज 4, तो पेज 4 हमारे पहले से सिस्टम में प्रेजेंट नहीं है, तो ये कहलाता है मिस। So in case of miss, we have to replace one of the page from the system which is already filled. सर FCFS और FIFO एक ही है क्या? Yes, FCFS कर लीजिए, ये FIFO कर लीजिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, बोथ आर सेम। ओके, अब यहां पे एक बात आ जाती है कि एक टर्म आता है विच इज कॉल्ड एज मैंडेटरी पेज फॉल्ट। मैंडेटरी पेज फॉल्ट, अब इनिशियल में क्या होता है, जब आपका सिस्टम स्टार्ट होता है तो आपको याद होगा जो आपका मेन मेमोरी है इट इज वॉलेटाइल इन नेचर, इट इज वॉलेटाइल इन नेचर। इट मीन्स कि जब आपका मेन में रैम स्टार्ट होता है तो उस समय आपके रैम में कुछ नहीं होता है, ब्लैंक होता है। तो in initial case, if we have pages ordered in this fashion, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका तब भी वहां पे जब इनिशियल में चूंकि ये खाली है, अब पेज 0 का डिमांड है तो पेज 0 चलो ठीक है सिस्टम में आया, तब भी ये क्या करेगा, दिस इज ऑल्सो काउंट एज मिस, क्योंकि वो पहले प्रेजेंट था नहीं, पेज 0 पहले से प्रेजेंट था नहीं, तो वो क्या हो गया, दिस विल ऑल्सो काउंटेड एज मिस। ओके, दिस विल काउंटेड एज मिस। उसी तरह से पेज 1 आएगा तो मिस होगा, पेज 2 आएगा तो मिस होगा, पेज 4 आएगा तो मिस होगा। तो अगर हमारे पास 4 फ्रेम अवेलेबल हैं तो मैंडेटरी मिसेस जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, आपके 4 मैंडेटरी मिस इनिशियल में तो होंगे ही होंगे। मैं ये एक जनरल सिनेरियो बता रहा हूं, मैं किसी पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी पे अभी नहीं आया हूं, मैं एक जनरल सिनेरियो बता रहा हूं। ओके, सो दिस इज द केस। अब नेक्स्ट हम आते हैं FCFS पे कि FCFS जो टेक्निक है उसमें अगर हमारा जो मिस हुआ तो हम कैसे उसको हैंडल करेंगे। तो FCFS या कह लीजिए, अभी किसी ने पूछा अभी, FCFS या कह लीजिए फीफो पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी ये कहता है कि इफ देयर विल बी द मिस देन वी विल replace that page with whatever page we have available। तो जो पेज हमारा सबसे पहले आया होगा, जो अवेलेबल पेजेस हैं सिस्टम में, उन अवेलेबल पेजेस में जो पेज सबसे पहले आया होगा उस पेज को हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। इट मींस जो फर्स्ट कम हुआ होगा उसको सबसे पहले फर्स्टली रिप्लेस कर देंगे, या सिंपल कहिए कि जो सबसे ओल्ड पेज होगा अमंग ऑल द अवेलेबल पेजेस, दैट पेज विल बी चूजन एज द विक्टिम फॉर रिप्लेसमेंट। क्लियर है सभी को?
फीफो? यस सर। यस सर। जैसे कि मैंने ये जो आपका स्ट्रिंग लिया है, रिक्वेस्ट स्ट्रिंग लिया है 0 1 2 4 8 4 0 2। हम लोग डिटेल में इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे, बट अभी एक छोटा सा मैं न्यूमेरिकल ले रहा हूं। और यहां पे मैं बोल रहा हूं कि आपके पास जो अवेलेबल नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं वो 2 फ्रेम अवेलेबल हैं। तो देखिए इनिशियल में तो पेज 0 आएगा, फिर क्या होगा, आपका पेज 1 आएगा। अब देखिए अब कौन आना चाह रहा है, पेज 2। क्या अवेलेबल है? नहीं अवेलेबल है। तो कौन सा पेज रिप्लेस होगा? तो पेज 0 जो कि सबसे पहले आया था वो रिप्लेस हो जाएगा। यू हैव टू फाइंड आउट दिस पेज। एंड हाउ यू विल फाइंड आउट? इफ यू विल मेंटेन अ क्यू, आपने एक डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा होगा विच इज नोन एज क्यू। तो क्यू में क्या होता है, जो सबसे पहले आता है वही सबसे पहले बाहर जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ डेटा स्ट्रक्चर नोन एज क्यू वी कैन डू दिस प्रोसेस। अब क्या आया, अब देर इज अ नीड ऑफ 4। तो देर इज अ नीड ऑफ 4। तो 2 है 1 है 2 है 1 है। सिस्टम में सबसे पहले कौन आया था स्टूडेंट? 1। सबसे पहले कौन आया था? 1। 1। तो 1 विल बी रिप्लेस्ड विथ 4। अब नेक्स्ट है 8। 8 किसको रिप्लेस करेगा स्टूडेंट? 2 को सर। नेक्स्ट क्या है? 4। तो 4 किसको रिप्लेस करेगा स्टूडेंट? हिट हो जाएगा सर। यस सर। वेरी गुड, इट विल बी हिट, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इट विल बी हिट, इट विल नॉट रिप्लेस एनी पेज। ओके, इट विल नॉट रिप्लेस एनी पेज। अब क्या होगा, अब देखिए, अब अगर हमारा 8 और 4 हमारे सिस्टम में है, तो अब अगर हमारा 0 क्या 0 आना चाहता है, 0 है क्या सिस्टम में हमारे पास? नहीं है। इट विल मिस। तो विच विल बी चूजन एज अ विक्टिम? विच विल बी चूजन एज अ विक्टिम? 8। नो नो नो, विच पेज? 4 सर। यस 4, क्योंकि 4 सबसे पहले आया था ना। 8 से पहले तो 4 आ चुका है ना। यहां पे देखिए 4 आ चुका है। 4 अभी नया आया नहीं है। 4 यहां तो हिट हुआ है, ये आया नहीं है, ये तो हिट है। तो सर हिट हुआ फिर से तो ये आगे आ जाएगा ना, मतलब नया हो जाएगा ना? नहीं नहीं, आगे नहीं आएगा, वो तो पहले से ही सिस्टम में बना हुआ है ना। वो सिस्टम में पहले से बना हुआ है, तो वो आगे क्यों आएगा? वो पहले से प्रोसेसिंग कर रहा है। तो दिस इज द केस कि अगर कोई पहले से सिस्टम में बना हुआ है तो उसका टाइम वहीं से स्टार्ट हुआ है। अभी नया टाइम स्टार्ट नहीं हुआ है, वो पहले से ही उसका क्लॉक चल रहा है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई दैट पेज इज द ओल्डेस्ट पेज। वी हैव टू फाइंड द क्लॉक। आप चाहे तो इसमें क्लॉक भी चला सकते हैं कि कौन पेज किस टाइम पे आया। 0 पेज T1 पे आया, T2 पे आया, T3 पे आया। तो जिसका सबसे ओल्डेस्ट क्लॉक होगा आप उसको निकाल देंगे। ठीक है, समझ में आया फीफो? ओके सर। किसी को प्रॉब्लम फीफो को समझने में? नो सर। नो। चलिए, नेक्स्ट आपका अप्रोच है विच इज नोन एज ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी क्या होता है, आपका फ्यूचर देखता है। इट लुक्स इन द फ्यूचर कि फ्यूचर में किस पेज का यूज होने वाला है, और जिस पेज का फ्यूचर में यूज होने वाला है उस पेज को रख लिया जाता है सिस्टम में, और बाकी जो पेज जिनका यूज नहीं होने वाला है फ्यूचर में, उनमें से किसी पेज को सेलेक्ट किया जाता है एज अ विक्टिम। ओके, अब उनमें से अगर कोई ऐसे पेज मिले, 2 या 2 से अधिक पेज ऐसे मिले जो कि हमारे विक्टिम की तरह हो सकते हैं, उनको फ्यूचर में यूज ही नहीं होना है, तो उस पेज को सेलेक्ट किया जाता है जो कि सबसे पहले आया हो। गेट इट? सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्यूचर स्ट्रिंग जो हमें रिक्वेस्ट स्ट्रिंग मिली है उसमें से अगर हम यहां पे खड़े हैं
जैसे कि मैं यहीं पे एग्जांपल ही ले रहा हूं, यही स्ट्रिंग का यूज कर रहा हूं फिर से मैं, और वही सिनेरियो है कि 2 फ्रेम है हमारे पास अवेलेबल। तो पहले में क्या हुआ, पहले में हमारे पास जो रिक्वेस्ट आया वो रिक्वेस्ट आया किसका, 1 का, 0 का, सॉरी 0 का। तो क्या 0 अवेलेबल है, नहीं, हमने क्या किया उसको प्लेस कर दिया, फ्री है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। नेक्स्ट हमारे पास रिक्वेस्ट क्या आया, 1 का, तो 1 को प्लेस कर दिया, 1 था नहीं, 1 को प्लेस कर दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास फ्यूचर स्ट्रिंग में कौन सा आया है, 2, कौन सा आया है, 2। तो अब हम क्या करेंगे, फ्यूचर को देखेंगे, फ्यूचर स्ट्रिंग कहां से स्टार्ट होगा, 2 के बाद से स्टार्ट होगा। तो अब हम फ्यूचर को देखेंगे किसका यूज होने वाला है फ्यूचर में। तो हमने देखा कि 4 का यूज होने वाला है, 4 तो है नहीं हमारे पास सिस्टम में, चलो बात ही नहीं है। 8 का यूज होने वाला है, 8 भी नहीं है सिस्टम में। 4 का यूज होने वाला है, 4 भी नहीं है सिस्टम में। 0 का यूज होने वाला है। अब हमें मिल गया कि 0 का यूज होने वाला है और 2 का यूज है, 2 तो पहले से भी है नहीं सिस्टम में। तो अब हमारा किसका यूज होने वाला है, 0 का यूज होने वाला है। तो हम 0 को क्या करेंगे, बनाए हुए रखेंगे सिस्टम में, और किसको रिप्लेस करेंगे, 1 को रिप्लेस करेंगे। तो 1 रिप्लेस हो जाएगा किससे, 2 से। ओके, we will look into the future string and we will find that which page among all these pages is going to be used. And if we will find a page that which is not going to be used, तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में उस पेज को रिप्लेस कर देंगे। और अगर अब अगर बात यह है कि हमारे पास अगर नंबर ऑफ फ्रेम्स n है, तो हम क्या करेंगे, वी विल ओनली फाइंड आउट दैट जो हमारे पास अवेलेबल हैं, अवेलेबल पेजेस हैं, उन अवेलेबल पेजेस में n-1 डिफरेंट पेज ऐसे कौन कौन से हैं जिनका फ्यूचर में यूज होने वाला है। हम उतना ही देखेंगे, पूरे स्ट्रिंग को हम नहीं झांकने के लिए जाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ इतना ही देखेंगे कि n-1 अवेलेबल हमारे पास जो फ्रेम्स हैं, जो अवेलेबल पेजेस हैं, उन पेजेस में n-1 डिफरेंट पेजेस कौन से हैं जिनको कि हमें यूज करना है। तो बाकी बच जाएगा 1, तो उस पेज को हम रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, फ्यूचर स्ट्रिंग को देखते हुए समझ में आया या फिर से समझाऊं? नहीं सर, ये दोनों रहता 0 1 दोनों रहता फ्यूचर में तब। ओके चलिए सर इसी को कंप्लीट कीजिए ना सर, 0। सर इसी का हाँ, अगला टेक्स्ट तो वही है, आगे सर कीजिए 0 ना। 1 2 अरे 0 मैं 2 वही कर रहा हूं भाई। ठीक है, अब 2 है। अब मैं थोड़ा फ्यूचर स्ट्रिंग चेंज करूंगा। अब देखिए क्या है, यहां पे हमें मिल गया 0, ओके, यहां पे मिला 2, यहां पे मिला 4, यहां पे मिला 0, यहां पे मिला हमें 1, और यहां पे फिर से मिला 1, और यहां मिला 0। तो अब क्या है हमारे पास, 2 फ्रेम था, 0 और 1 प्रेजेंट था, यही केस लिया है मैंने। अब 2 आया, तो 2 के कारण क्या हुआ, हमारा 2 अवेलेबल नहीं है, तो वी हैव टू फाइंड द विक्टिम विच विल बी रिप्लेस्ड। तो अब हमने देखा जब हमारे पास कितना नंबर ऑफ फ्रेम्स है सिस्टम में, 2, तो n की वैल्यू हो गई 2। अब मैंने बोला कि आपको n-1 डिफरेंट फ्रेम आपको मिल जाने चाहिए जो कि अब यूज होने वाले हैं। तो n-1 करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी, 1। तो एक ही फ्रेम आपको फाइंड करना है जिसको रीसेंट मतलब फ्यूचर में यूज होने वाला है। तो यहां से जब हम बढ़ेंगे तो क्या है, 0 हमारा यूज होने वाला है। क्या सिस्टम में है, यस सिस्टम में है पहले से। तो हमें मिल गया जो फ्रेम हमें चाहिए था, फ्रेम नंबर, तो फ्रेम नंबर हो गया 0 जिसको कि हम फ्यूचर में यूज करने वाले हैं। तो विच विल बिकम द विक्टिम, विक्टिम विल बिकम 1, और इसको क्या किया जाएगा, 2 से रिप्लेस कर दिया जाएगा। एनी डाउट? फ्यूचर में यूज होने वाला है 1 भी, बट हमें पहले कौन मिला, पहले मिला 0। तो हम 0 को
क्या करेंगे, जीरो को विक्टिम नहीं बनाएंगे, विक्टिम हम बनाएंगे जो अदर पेजेस, क्योंकि n-1 का भी जो हमारा रिस्ट्रिक्शन है उसको भी हम फॉलो करेंगे। ओके, यहां पे काउंट नहीं चल रहा है कि किसका कितना बार यूज होना है या ये, यहां पे सिंपल चल रहा है कि किसका फ्यूचर में यूज होने वाला है, रीसेंट फ्यूचर में किसका यूज होने वाला है, हम सिर्फ उतना को ही देखेंगे। और हमें क्या मिला कि आपका जो फ्रेम नंबर 0 है उसका वो रिसेंट फ्यूचर में यूज होने वाला है, तो दैट्स व्हाई दैट 0 पेज विल नॉट बिकम द विक्टिम। विक्टिम कौन बनेगा, 1। अब देखिए यहां पे क्या हो गया, 0, यहां पे 2 आ गया सिस्टम में। अब यहां पे एक पैरामीटर आपको कैलकुलेट करना होता है इस टाइप के प्रॉब्लम में कि नंबर ऑफ मिसेस कितने हुए या नंबर ऑफ हिट कितना हुआ, नंबर ऑफ मिस कितना हुआ, नंबर ऑफ हिट कितना हुआ। या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका कोई पर्टिकुलर फ्रेम है, फ्रेम नंबर 1 जब सेकेंड टाइम आया तो उस समय हमारे पास जो आपका पेज नंबर 1 जब सेकेंड टाइम आया तो हमारे जो अवेलेबल फ्रेम था उसमें कौन कौन से पेजेस थे, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बता दिया आपको, ठीक है। तो अब अगर हम बढ़ेंगे, 2 का काम हो गया खत्म। इनिशियल मिस तो आपका एक 0 के कारण हो गया, एक 1 के कारण हो गया, तो 1 + 1 2 मिस हो गए। अब 2 के कारण भी 2 भी आपका प्रेजेंट नहीं था तो 2 के कारण भी एक मिस हो गया। अब देखिए 0 जैसे ही मिला क्या हो गया, आपका हिट हो गया, हिट हो गया तो आपका एक हिट हो गया है, एक हिट यहां पे आ गया। अब हमारा क्या होगा 2, तो 2 क्या है, फिर से 2 हमारे पास क्या है सिस्टम में है तो हिट हो गया ये भी। एनी कंफ्यूजन, कहीं भी कंफ्यूजन है तो डू लेट मी नो। हम ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो 2 भी हो गया हिट। नेक्स्ट क्या हुआ 4 के कारण, 4 क्या है, क्या हमारे सिस्टम में 4 है, नहीं। किसको रिप्लेस करेंगे, 2 को सर, 2 को रिप्लेस करेंगे क्योंकि 0 हमारे फ्यूचर में यूज होने वाला है, तो 2 विल बी रिप्लेस विद द 4 और ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी मिस। नेक्स्ट क्या हुआ 0 पहले से है, इट विल बी हिट। 1 क्या सिस्टम में है हमारे पास, 1 क्या No, सिस्टम में sir. है, नहीं No, है, sir. तो कौन सा रिप्लेस होगा, 4। 4 sir. रिप्लेस्ड। लेकिन अगर ठीक है, अगर यहां पे हमारा क्या होता, 0 की जगह पे 4 होता तो कौन रिप्लेस होता, हम यहां पे हैं अभी 1 के बारे में बात कर रहे हैं। 0 sir. 0 विल बी, 0 होता। यस 0 विल बी रिप्लेस्ड। तो दिस इज द ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी। और ऑप्टिमल में किसको रिप्लेस किया जाता है, फ्यूचर को देखते हुए कि हम कौन सा हमारा ऐसा पेज है जिसका फ्यूचर में यूज नहीं होने वाला है। और ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी के बारे में जब हम बात करें तो उसमें एक स्पेशलिटी होता है कि जो नंबर ऑफ मिसेस होते हैं वो सबसे कम आते हैं ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी में, क्योंकि ये जो असंभव चीज है, विच इज नॉट पॉसिबल इन द सिस्टम, कि आप फ्यूचर को देख पाए, ये चीज पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपका जो ये फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, ठीक है, सबसे कम पे मिसेस आते हैं, बट ये इंप्लीमेंटेबल नहीं है क्योंकि ये फ्यूचर को देखना चाहता है, फ्यूचर को देख सकता नहीं है, ठीक है। LRU, नेक्स्ट अगर हम बात करें LRU के बारे में, लीस्ट सर हिट और मिस को पूरा कंप्लीट कीजिए। अच्छा, हिट और मिस को कंप्लीट करें। चलिए Yes, 1 आया तो कौन रिप्लेस हुआ, 4। तो 1 के कारण क्या हुआ, मिस हुआ, एक मिस यहां पे हुआ, एक मिस यहां पे हुआ, एक मिस यहां पे हुआ। 0 इट इज नॉट मिस, 2 इट इज नॉट मिस, 4 इट इज अ मिस, 0 is a hit, 0 is a hit, 1 is a miss
and 4 is replaced in this case, 1 again is a hit, क्योंकि 1 है हमारे सिस्टम में, 1 हो गया हिट. देन क्या हुआ? 0. 0 क्या हुआ? 0 इज हिट अगेन. तो अब यहां पे डायरेक्टली काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5. 5 आपके हिट हो गए, 5 हिट हो गए. और मिसेस कितने हो गए? 1 2 3 4 5. 5 मिस भी हो गए. ओके, 5 hit and 5 miss. Any problem? नो सर. चलिए, नेक्स्ट आता है आपका. ओके, टाइम भी होने वाला है. ओके, आज यहीं पे स्टॉप करते हैं. आई एम गिविंग यू लिंक फॉर टुडेज अटेंडेंस. तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो डू लेट मी नो दैट सर यहां पे प्रॉब्लम हो रहा है इन फीफो, इन ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी. एंड फीफो को जब आप और डिटेल में जानेंगे तो एक चलिए, मैं फीफो को और डिटेल में अगर जानेंगे तो फीफो में एक और समस्या है, जिस समस्या को कहा जाता है, स्टूडेंट याद रखिएगा क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यू और इसमें पूछे जाते हैं, कि इसके बारे में मैं अभी आपको बताने वाला हूं. फीफो के पास एक और प्रॉब्लम होता है कि इन जनरल केस क्या होना चाहिए. इन जनरल केस क्या होना चाहिए अगर हम नंबर ऑफ क्या करें, फ्रेम इंक्रीज कर दें. नंबर ऑफ फ्रेम्स अगर हम इंक्रीज कर दें तो हमारा जो मिस होना चाहिए वो इंक्रीज होना चाहिए या डिक्रीज होना चाहिए. प्लीज रिस्पॉन्ड. मैंने क्वेश्चन पूछा है कि अगर हम नंबर ऑफ फ्रेम जो है वो इंक्रीज कर दें, नंबर ऑफ फ्रेम इंक्रीज कर दें तो मिसेस इंक्रीज होने चाहिए या डिक्रीज होने चाहिए? डिक्रीज. यस, आप सभी का राय है डिक्रीज होनी चाहिए. बट फीफो पॉलिसी में क्या होता है, देयर इज अ प्रॉब्लम, और इसको मैं नेक्स्ट क्लास में दिखाऊंगा भी आपको, कि देयर इज अ प्रॉब्लम दैट इफ वी इंक्रीज. मैंने आपको अटेंडेंस का लिंक दे दिया है, आप लिंक से फिलअप करते रहिए, मैं अपना आपको बताते जा रहा हूं. अगर आप नंबर ऑफ फ्रेम इंक्रीज भी कर दे तो फॉर द सर्टेन रेफरेंस स्ट्रिंग इट मे पॉसिबल, मैं ये बात बोल रहा हूं, इट may possible that number of misses will also increase. मैं ये आपको एग्जाम्पल भी दिखाऊंगा, और इस एनोमली को कहा जाता है बी लेडी एनोमली. याद रखिएगा स्टूडेंट, बी लेडी एनोमली क्या होता है कि फीफो का वो सिचुएशन है जिस सिचुएशन में हम फीफो में नंबर ऑफ फ्रेम्स जो है वो इंक्रीज भी कर देते हैं तो हमारे नंबर ऑफ मिसेस जो डिक्रीज होने चाहिए, डिक्रीज होने की जगह पे इंक्रीज हो जाते हैं. तो वो सिचुएशन कहलाता है आपका बी लेडी एनोमली. याद रहेगा सभी को? यस स्टूडेंट. I will show you this example also, that how it is increasing. फीफो एक अलग सा फीचर प्रेजेंट करता है कि वहां पे इंक्रीज करने पे भी क्या होता है, मिसेस इंक्रीज हो जाते हैं, जो कि नॉर्मल केस में डिक्रीज होने चाहिए. ठीक है, सो दिस इज द केस. ओके, वेरी गुड. And a number of students are decreasing day by day. Number of students are decreasing day by day and it is very problematic. किसी को पता है क्या कि नंबर ऑफ स्टूडेंट क्यों डिक्रीज हो रहे हैं भाई? नहीं, अभी का मैं बात नहीं कर रहा हूं, क्लासेस में भी तो नेटवर्क इशू. ओके, आपकी क्लासेस है, यू कैन ज्वाइन द क्लास ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, यू कैन ज्वाइन दैट. बट हाँ, हमारे यहाँ भी बारिश हो रही है.
That is not an issue. Okay, student, we will meet in the next session and we will discuss in detail related with page replacement policy, and in the next class we will do lots of numerical also.